आज हम लोग डिस्कस करना है पीरियडिक टेबल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स लोगों का डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे वेरीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, हाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वेरीज डाउन द ग्रुप, we have to discuss today. So topic is periodic trends in properties of elements. Different elements का property from left to right in a period down the group properties varies होता है. So अभी हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है. According to your textbook, we have to discuss about the atomic or ionic radius, next one ionization enthalpy, third one is electron gain enthalpy, and fourth one is electronegativity. So these are the different properties of elements of the periodic table, and these properties are varying from left to right in a period, and their values also varies down the group. So first of all, we have to discuss about the atomic or ionic radius. Atomic or ionic radii, radius को प्लूरल में रेडियाई बोला जाता है, RADII. एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई डिटरमाइन करके एक एटॉम और आयन का साइज डिटरमाइन किया जाता है. When atomic or ionic radii increases, then size of the atom or ion increases. So first of all, we are going to discuss about the atomic or ionic radii. Atomic radii का बारे में suppose हम लोग first of all discuss करना है. Atomic radii means radius of an atom, the distance between the nucleus and outermost cell in an atom is called atomic radii. So atomic radii we can classify it into two types. First one is covalent radii, and another one is metallic radii. So atomic radii or radius of an atom we can classify into two types, covalent radii and metallic radii. So what is the difference between them? So covalent radii is related to the non-metal. Radius of a non-metal atom is called covalent radii, whereas radius of a metal is called metallic radii. Radius of a metal is called metallic radii, and radius of a non-metal is known as covalent radii. So let us consider a molecule. Suppose let us consider a molecule. Let us consider a molecule AB. Let us consider a molecule AB. So in this molecule, both A and B, AB molecule में A and B atoms are bonded by a single covalent bond. So एटॉम टू एटॉम कब कोवेलेंट बॉन्ड होता है?
जब बॉन्डेड एटम्स क्या होता है, नॉन मेटल. So in AB molecule, A and B atoms are bonded by a single covalent bond. Covalent bonds are actually three types: single, double, and triple. So A and B in this molecule bonded by covalent bond. That means what? A and B are non-metal atom. क्योंकि non-metal to non-metal इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. सपोज दिस इज द एटॉम ए, this is the atom A and this is the another atom B. दोनों का बीच में ए बी मतलब ए बी कंपाउंड में एटम ए इज ए नॉन मेटल, बी ऑल्सो नॉन मेटल, देन ए एंड बी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. सो दोनों एटम का न्यूक्लियस का बीच में डेफिनिट डिस्टेंस होगा. दैट डिस्टेंस let us consider as AB. हम लोग कंसिडर कर रहा है AB. So what is AB now? AB is internuclear distance. Internuclear distance. Internuclear distance means distance between the nucleus of two adjacent atom. So AB is the internuclear distance. अभी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम बी. सो फॉर दिस मॉलिक्यूल कोवेलेंट रेडियस फॉर atom A RA equal to half of the internuclear distance AB. Similarly, covalent radius for atom B RB is equal to half of the internuclear distance AB. So covalent radius is related to then what type of atom? Covalent radius is related to covalently bonded atoms. And covalent bond is formed by what type of atom? Non-metal atom. So A is non-metal, B also non-metal. So A and B bonded by a covalent bond. So covalent radius of atom A, covalent radius of atom A equal to half of the internuclear distance AB. Similarly, covalent radius of atom B is equal to half of the internuclear distance AB. This is covalent radius. So covalent radius is related to non-metal atom, and metallic radius is related to metal atom. Suppose this is D atom, and this is another one atom C, D and C, and here we are considering both D and C are metal atom. D and C are metal atom, and metal to metal जो bonding होता है that bonding is called metallic bonding. तो मेटल एटम टू मेटल एटम जो केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग. सो डी इज ए मेटल एंड सी ऑल्सो मेटल. सो डी एंड सी बॉन्डेड बाय ए मेटेलिक बॉन्ड. सो इन दिस केस ऑल्सो डी एटम का न्यूक्लियस एंड सी एटम का न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और लेट अस कंसीडर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज DC. इन दिस केस ऑल्सो DC क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. DC is internuclear distance. So in case of this molecule, in this case, then metallic radius of D, suppose RD, metallic radius of atom D also equal to half of the internuclear
distance dc. Similarly, metallic radius of C also equal to half of the internuclear distance dc. हम लोग अभी रेडियस को क्यों मेटेलिक रेडियस बोल रहे हैं? क्योंकि एटॉम्स आर बोन्डेड बाय मेटेलिक बोन एंड डी एंड सी आर द मेटल एटम. इन दिस केस हम लोग रेडियस ऑफ एटॉम ए एंड बी को क्यों कोवेलेंट रेडियस बोल रहे हैं? बिकॉज बोथ द एटॉम्स आर बोन्डेड बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ हम लोग डिस्कस करना है एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड, दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड कैसे वेरीज होता है. सो स्टडी करके ये मिला है इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीजेस with increase in atomic number. Across the period with increase in atomic number. Across the period atomic number बढ़ जाता है. In the modern periodic table, elements are arranged in the increasing order of atomic number. So when atomic number increases across the period, then atomic radii, that means size of the atom, ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे डिक्रीज होता है. क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, देन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ जाता है. और जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है, देन न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का ऊपर में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है. That means effective nuclear charge increases. जब न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का ऊपर में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, that is called increase in effective nuclear charge. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के लिए न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ना पड़ेगा, एंड न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के लिए एटॉमिक नंबर बढ़ना पड़ेगा. So across the period with increase in atomic number, the number of proton at the nucleus increases, so effective nuclear charge increases. That means nucleus का outermost electron का ऊपर में attraction बढ़ जाता है. जब nucleus का outermost electron का ऊपर में attraction बढ़ जाता है, then electrons of the outermost shell come closer to the nucleus, then radius of the atom decreases. And one more point also, across the period number of cells constant रहता है. Across the period electrons are added to the same cell. जैसे कि in the second period में जितना एलिमेंट होगा, सभी एलिमेंट में across the period electrons are added to the second cell. सो पर्टिकुलर एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहता है. लेकिन अक्रॉस द पीरियड क्या बढ़ जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का ऊपर में अट्रैक्शन बढ़ जाता है. देन साइज, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एटॉम क्या होता है? डिक्रीजेस ग्रेजुअली अक्रॉस द पीरियड. देन इन डाउन द ग्रुप atomic radii, that means atomic size of the element increases. So why atomic radii increases down the group? Because down the group number of cells not constant, number of cells increases down the group. जब down the group number of cells बढ़ जाता है, then distance between the nucleus and outermost cell increases. That means radius increases down the group. So you remember it, down the group atomic radii always increases. Why increases? This is due to the increase in number of cells down the group. And across the period, why atomic radii gradually decreases?
because across the period effective nuclear charge increases with increase in atomic number and electrons are added to the same cell across the period. So in your textbook, एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप कैसे वेरीज हुआ है ये दोनों टेबल में दिखाया गया। एक है टेबल नंबर 3.6 ए, दिस इज टेबल नंबर 3.6 बी। So these are the elements of the same period: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Then atomic radius को पिकोमीटर यूनिट में दिया हुआ है। देखो across the period एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। 152, 111, 88, 77, 74, 66, 64 like that. Atomic radius gradually decreases along the period. Similarly, these are the element of third period. For this element also, atomic radius of the atom gradually decreases with increase in atomic number. Sodium का atomic number 11, magnesium 12, 13, 14, 15, 16, 17. So across the period atomic number increases, effective nuclear charge increases, so atomic radius decreases. And down the group atomic radius increases. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, these are the group 1 elements called alkali metal. So down the group atomic radius increases, that means size increases. देखो 152 radius for lithium, सोडियम का रेडियस है 186, पोटेशियम 231, रुबिडियम 244, सीजियम 268. So down the group radius increases. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, statin, these are the group 17 element. Down the group इन लोगों का भी atomic radius increases. So in a particular group, down the group atomic radius increases, across the period atomic radius decreases. अभी हम लोग डिस्कस करना है अबाउट द आयोनिक रेडियस। तो रेडियस ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। आयन दो टाइप का है, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन मीन्स कैटायंस आर पॉजिटिव आयन्स आर नोन एज कैटायन, एंड एनायंस आर नेगेटिव आयन्स आर नोन एज एनायन। कैटायंस आर पॉजिटिव आयन, एनायंस आर नेगेटिव आयन। सो न्यूट्रल एटम से कैटायन कैसे फॉर्म होता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कैटायन में न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, और एनायन न्यूट्रल एटम से कैसे फॉर्म होता है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एनायन में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। सो कैटायंस में प्रोटॉन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, so cations are positively charged, protons are positively charged, electrons are negatively charged. और न्यूट्रल एटम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है। सो एक एटम न्यूट्रल होने के लिए एटम का अंदर में पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। सो न्यूट्रल एटम से कैटायन बनता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूट्रल एटम से एनायन बनता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अभी हम लोग आयोनिक रेडियस भी, रेडियस ऑफ द आयन ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो रेडियस ऑफ एन आयन मीन्स एक आयन का, एक कैटायन का और एनायन का जितना रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। सो हम लोग अभी एक पॉइंट जनरलाइज करना है, दैट पॉइंट इज कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन द पेरेंट एटम, whereas anions are bigger in size than the parent atom.
सो साइज डिटरमाइन करता है, एक कैटायन और एनायन का साइज डिटरमाइन करेगा उनका रेडियस। मतलब कैटायन का रेडियस ऑफ ए कैटायन स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द पेरेंट एटम, एंड रेडियस ऑफ एन एनायन बिगर देन द, मतलब लार्जर देन द पेरेंट एटम। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये पॉइंट को, cations have smaller radius than the parent atom, and anions have larger in radius than the parent atom। हम लोग ऐसे भी लिख सकता है। सो these are the important point। केटायन का साइज ऑलवेज छोटा होता है किससे? पेरेंट एटम से, और एनायन का साइज ऑलवेज बिगर होता है देन द पेरेंट एटम। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज दिस इज सोडियम एटम एंड दिस इज सोडियम आयन। दिस इज ए केटायन, दिस इज ए सोडियम एटम इज ए केटायन। तो सोडियम एटम से सोडियम आयन बना। सो ये सोडियम एटम को हम लोग बोलेगा पेरेंट एटम, और पेरेंट एटम से ये पॉजिटिव आयन बना। इसको डॉटर आयन बोल सकता है, डॉटर आयन, DAUGSTR। सो अभी देखो हम लोग यहाँ क्या जनरलाइज किया? केटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन द पेरेंट एटम। मतलब केटायन का रेडियस कमती होता है देन द पेरेंट एटम। सो व्हाई? अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ES मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट द न्यूक्लियस ऑल्सो 11, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एट द न्यूक्लियस। और इनमें कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। पेरेंट एटम में 11 इलेक्ट्रॉन था, जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये केटायन बना, सोडियम आयन बना। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू लॉस नहीं किया, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कभी भी लॉस नहीं होता है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। ओनली इलेक्ट्रॉन ही लॉस और गेन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस का बाहर में होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स द सेम। देखो सोडियम एटम एंड सोडियम आयन दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है, दैट मीन्स दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है एट द न्यूक्लियस। लेकिन सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, सोडियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, सोडियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 11। तो अभी कंपेयर करो, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगा ना 11 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगा? 11 10 को ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगा। और जब स्ट्रांगली बाइंड होगा देन इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, so radius decreases. So when effective nuclear charge, that means number of proton at the nucleus, remains the same, then when number of electron decreases, then what happen? Size will be decreased. So cations are always smaller in size than the parent atom, क्योंकि cations में number of electrons कमती होता है देन द पेरेंट एटम, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही रहता है। सिमिलरली कैल्शियम एटम, दिस इज कैल्शियम आयन, सो कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द पेरेंट एटम। पोटासियम इज स्मॉलर इन साइज देन द पोटासियम एटम।
सो रिमेंबर इट, पेरेंट एटम एंड कैटायन का साइज कंपेयर करने से, रेडियस कंपेयर करने से कैटायन का साइज ऑलवेज क्या होगा, स्मॉलर होगा देन द पेरेंट एटम। सो अभी एनायन का पास आना है। एनायन, सपोज दिस इज ए ऑक्सीजन और दिस इज एन ऑक्साइड आयन। तो ऑक्सीजन इट इज पेरेंट एटम, इससे ऑक्साइड आयन बना बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, एटॉमिक नंबर इनका 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए पेरेंट एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, देन 8 + 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10। तो ऑक्साइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट द न्यूक्लियस ऑल्सो 8। तो देखो अभी 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली बाइंड करेगा ना, 8 10 को ज़्यादा टाइटली बाइंड करेगा, 8 8 को ज़्यादा टाइटली बाइंड करेगा। सो पेरेंट एटम इज स्मॉलर इन साइज देन द एनायन। सो पेरेंट एटम इज स्मॉलर इन साइज देन द एनायन, क्योंकि एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सेम रहता है। दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है, लेकिन एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। सो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का ऊपर में अट्रैक्शन कमती हो गया, मतलब वीकली बाइंड कर रहा है 8 10 इलेक्ट्रॉन को। सो एनायंस आर स्मॉलर इन साइज, बिगर इन साइज देन द पेरेंट एटम ऑलवेज। सिमिलरली क्लोराइड आयन इज एन एनायन बिगर इन साइज देन द parent atom. So let us consider these are the species: oxide ion, fluoride ion, neon it is neutral atom, sodium ion and this is magnesium ion. सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। सो नियोन का एटॉमिक नंबर 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें कितना है 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन हुआ 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 10। सो इन लुक ऐसा स्पेसिस है, स्पेसिस मतलब दे में बी कैटायन, एनायन और न्यूट्रल एटम। दीज आर नॉट बायोलॉजिकल स्पेसिस। केमिस्ट्री में स्पेसिस मतलब आयन्स को बता रहा है, न्यूट्रल एटम्स को बता रहा है। सो दीज आर इन लुक ऐसा स्पेसिस है जहाँ सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो दोज स्पेसिस आर कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक species. So these are isoelectronic species. So isoelectronic species are containing same number of electrons. So isoelectronic species का रेडियस मतलब साइज कैसे वेरीज होता है, तो इनको देखने के लिए हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखना है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 8, इसके लिए 9, इसके लिए 10, इसके लिए 11, इसके लिए कितना है 12। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एट द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। सो क्या होगा, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को सबसे स्ट्रांगली बाइंड करेगा आउट ऑफ दिस स्पेसिस। सो मैग्नीशियम आयन का साइज सबसे छोटा होगा, नेक्स्ट सोडियम आयन, नेक्स्ट नियोन, नेक्स्ट दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस और साइज फॉर दिस आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। सो इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस size decreases, radius decreases with increase in nuclear charge, मतलब with increase in atomic number. Nuclear charge that means number of proton at the nucleus depends on atomic number. So हम लोग एक point generalize कर सकता है, in case of iso electronic species
in case of isoelectronic species, size or radius decreases with increase in nuclear charge, effective nuclear charge. Suppose this is another isoelectronic series, chloride ion. Suppose this is argon, this is potassium ion, this is calcium ion, and this is scandium ion. So इन लोगों में number of electrons, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया 18, इसका तो 18 है एटॉमिक नंबर. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया 18. कैल्शियम का 20, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया 18. स्कैंडियम का 21, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया 18 हुआ. जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18. सो दिस इज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज. लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इनका कितना है 17, इसका 18, इसका 19, इसका कितना है 20, इसका कितना है 21. तो 21 18 इलेक्ट्रॉन को सबसे स्ट्रांगली बाइंड करेगा. सो इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज. दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज. So in case of isoelectronic species, then size decreases with increase in nuclear charge or number of proton at the nucleus. So today we stop here. In next video we will discuss about the other periodic properties.